بغداد علامہ سید محمد میاں صاحب قبلہ حضرت سید مونس میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ بلا کسی تاخیر کے خطیب دورہ مفکر اسلام حضرت علامہ الحاج مفتی شہریار صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا حضرت اپنے کلمات خیر سے نوازیں۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت رسول کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للایمان والاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الذی استنقذنا به من عبادة الاوثان والاصنام وعلى آلہ واصحابہ وجباء البررة الکرام، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ایک بار انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ جان ایمان، اصل ایمان، روح ایمان، کنز ایمان، سید انس و جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں نذرانہ درود پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ کافی طویل عرصے کے بعد، یعنی کورونا قحط، لاک ڈاؤن کی شدت اور دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر کی سرزمین میں پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا۔ سوچا تھا کہ شاید چہرے پہ افسردگی ہوگی، لوگوں میں مایوسی ہوگی، حالات بدل گئے، آنے والے مستقبل کے ممکنہ خطرات سے لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے ہوں گے، لیکن یہاں آنے کے بعد جب آپ کے چہروں کی مسکراہٹ، آپ کی کثیر تعداد میں موجودگی، علماء کرام کا ایک امنتا ہوا سیلاب اور چہرے کی ہریالی کو دیکھ کر ایسا لگا کہ حالات چاہے جو بھی ہو جائیں، کوئی دفعہ ٹوٹے یا رہے، مگر 313 کی محبت دل سے کبھی نکلنے والی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جموں کشمیر کی سرزمین کو قیامت تک ہریالی اور خوشحالی عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے اس سرزمین کو بچائے اور آنے والے مستقبل میں اسے عشق رسول کی ایک اماجگاہ اور مرکزی حیثیت اللہ عطا فرمائے۔ آج تو مختصر سا وقت مجھ کو ملا ہے، اب تمہید کا ٹائم میرا ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، اس کے بعد 2 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، اب تمہید سے بھی کم وقت ملا ہے 40 منٹ کا۔ اب ایسے میں کیا بولوں کیا چھوڑوں، اتنا جان لیں کہ کل آپ جم کے آئیں انشاءاللہ اس قریب 1.5 سے 2 گھنٹے کی تقریر کل ہوگی۔ بس آپ اتنا جان لیں کہ بشارت ثقافی صاحب نے آپ کو کیوں بلایا ہے، کیوں دعوت دی ہے۔ آج دنیا بے شمار پرابلمز سے جوجھ رہی ہے، اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں دنیا میں جس کے حل کرنے کے لیے لوگ پریشان ہیں، مگر اسے سولوشن نہیں ملتا ہے۔ سارے دانشور تھک گئے، سارے سائنٹسٹ پریشان ہو گئے، سارے حکماء، سارے فلاسفر پریشان ہیں، تو آخر یہ بے چینی کا علاج کیا ہوگا؟ لوگ پریشان ہیں، دولتوں کی فراوانی کے باوجود بے چینی کیوں؟ آپ سب بیٹھے رہیں، بالکل مختصر سا وقت میرے پاس ہے، اور اٹھے بیٹھے نہیں۔ مجلس کا ادب اور احترام یہی ہے کہ جب گفتگو ہو تو غور سے اسے سنا جائے، اور کوئی ضروری نہیں کہ 5 گھنٹے کا خطاب ہو، 5 منٹ کی گفتگو آدمی کی سوچ میں انقلاب پیدا کر دے۔ ایک جملہ آدمی کے جینے کا انداز بدل دیتا ہے، شرط ہے کہ غور سے سنا جائے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے سامنے ایک شکایت آئی تھی کہ سرکار اس شخص نے مجھ کو کالی عورت کا بیٹا کہا۔ حضور نے نہیں کہا کہ تم نے کیوں کہا، تم نے کیوں کہا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تم کو، نہیں۔ سرکار اپنے معمول کے مطابق کھڑے ہو کر صرف اتنا کہا، افیکم الجاہلیہ الی الآن، کیا تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے؟
یعنی اب اسلام آ گیا ہے، کالے گورے کا فرق مٹ گیا ہے، امیری غریبی کا فرق مٹ گیا ہے، بحیثیت انسان سارے آدم کی اولاد ہیں۔ اب عزت صرف اسی کو ملے گی جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اسے اتنا ہی سمان ملے گا۔ حضور نے اتنا ہی کہا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے اور دوسرا وہ مائک پہ اذان ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سرکار نے ایک لمبا خطاب نہیں فرمایا، صرف ایک جملہ کہا، اب تک تم میں دور جاہلیت کی بات باقی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ جناب ابوذر زمین پہ لیٹ گئے اور کہا بلال تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو روند ڈالو کہ میں نے ایسا جملہ اپنی زبان سے کیوں نکالا۔ یعنی صرف حضور کا ایک جملہ جناب ابوذر کی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا، ندامت کے آنسو بہنے لگے اور اس کی تلافی کے لیے زمین پہ لیٹ گئے، اور جس بلال کو انہوں نے ابن سودا کہا تھا اس سے کہا کہ بلال کھڑے ہو جاؤ، اب اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو روند ڈالو کہ میں نے ایسا جملہ کیوں نکالا۔ وہ ایک جملہ تھا سرکار کا جو تیر بن کر جناب ابوذر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ محبت سے ایک جملہ 100 سال کے لیے کافی ہو جاتا، بے دلی کے ساتھ 5 گھنٹے کی تقریبی بے اثر ہو جاتی۔ سرکار تھے، صحابہ کرام تھے، وہ بھی انسان تھے۔ صحابہ کرام کی زبانی صرف ایک جملہ نکلا تھا مدینے کے انصار کی زبانی۔ جنگ کے وقت میں انصار مدینہ یاد آتے ہیں اور انعامات کی تقسیم کے وقت میں یہ نئے نئے کلمہ پڑھنے والے مکہ کے مسلمان نظر آتے ہیں، زبان سے نکل گئے۔ کیوں؟ بات صرف یہ تھی کہ فتح مکہ کے بعد جو دوسری سب سے بڑی جنگ ہوئی وہ غزوہ حنین۔ پہلے مسلمانوں کو اپنی تعداد پہ تھوڑا سا ناز ہوا تو جنگ شکست کے قریب پہنچنے لگی۔ سرکار دو جہاں میدان جنگ میں کود پڑے گا، ارن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ سرکار جب میدان میں کودے تو جو صحابہ بھاگ چکے تھے وہ سب واپس آئے، اب جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ ایسی زبردست فتح ہوئی کہ اس سے زیادہ مال غنیمت کسی جنگ میں ملا ہی نہیں، یعنی بھاری تعداد میں مال غنیمت موصول ہوئے۔ اب جو لوگ نئے نئے کلمہ پڑھے تھے مکہ کے، ان لوگوں کو حضور نے ہزار بکریاں، اونٹ، گھوڑے سب آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ مکہ سے جو لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے مدینہ سے، انصار مدینہ، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہزار بکریاں مکہ کے نئے کلمہ پڑھنے والوں کو دی جا رہی ہیں، ان کے جوانوں نے کہا کہ جنگ کے وقت میں انصار مدینہ یاد آتے ہیں اور انعامات کی تقسیم کے وقت میں ان 9 مسلموں کا خیال رکھا جا رہا۔ حضور کے کام میں بات آئی، سرکار نے انصار مدینہ کو جمع کیا، لمبا چوڑا خطاب نہیں کیا۔ حضور نے ایک مختصر سی تمہید کے بعد صرف ایک جملہ کہا تھا، انصار مدینہ تم بکری اور گھوڑے اور اونٹ کو دیکھ کر بددل ہو گئے ہو۔ یہ اونٹ، یہ گھوڑا، یہ بکری، اسی کو دیکھ کے ناراض ہو گئے اور تم نے اس طرح کے جملے استعمال کیا۔ تم کیوں نہیں سوچتے کہ جب یہ مکہ کے نئے مسلمان اپنے گھر لوٹیں گے ان کے ساتھ بکریاں ہوں گی، ان کے ساتھ گھوڑے ہوں گے، ان کے ساتھ اونٹ ہوں گے۔ یہ ابھی نئے نئے کلمہ پڑھے ہیں، میں نے اس لیے دیا تھا کہ ان کا دل ایمان پہ جم جائے، اسلام پہ جم جائے، میں نے اس لیے ان کو نوازا ہے۔ لیکن جب یہ جائیں گے تو گھوڑے، بکری، درہم و دینار، سونا چاندی لے کے جائیں گے، اور اے انصار مدینہ تو جب یہاں سے لوٹ کے جائے گا تو اپنے پیغمبر کے ساتھ ملنا جائے گا۔ اللہ عثمان، ایک جملہ تھا مصطفیٰ کا، انصاری مدینہ دھاڑے مار کر رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے روا ہو گئے۔ کہا سرکار مجھے نہیں چاہیے بھیڑ بکری گھوڑا، مجھے صرف سرکار چاہیے، اور مارے خوشی کے اچھلنے لگے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے مصطفیٰ جان رحمت چاہیے۔ ایک جملہ تھا جس نے سوچ دی، ایک جملہ تھا جس نے بے شمار بدگمانیوں کے بادل کو پھاڑ دیا۔ اس لیے تقریر اگر توجہ سے سنی جائے
تو واعظ کا ایک جملہ 100 سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اولیاء و صالحین اپنے مریدوں کے سامنے صرف ایک جملہ ہی تو کہتے تھے۔ سرکار غوث اعظم ہزاروں کی محفل میں صرف ایک جملہ کہا تھا، میں ابھی گھر میں تھا، یحییٰ کی ماں نے میرے لیے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا، وہ لانے لگی، ٹھوکر لگی، پیالہ ہاتھ سے گر گیا، سارا دودھ نیچے گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ اس میں کیا تھا؟ ایک جملہ مجمع میں آ گیا، لوگ غریبان پھاڑنے لگے، اپنے بال نوچنے لگے، لوگ جنگلوں کی طرف بھاگنے لگے۔ یعنی جملہ بالکل سمپل اور سادہ تھا، لیکن غوث اعظم نے اس جملے کی آڑ میں تصوف اور راہ سلوک کا جو نچوڑ اور جو مفہوم کامل ہے وہ سب کچھ غوث پاک نے عطا فرمایا۔ دنیا کی مثال ایک مٹی کے پیالے جیسی ہے، اور وہ پیالہ جو ابھی ٹوٹا، یہ دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے، چاہے دارا ہو، سکندر ہو، چاہے رستم ہو، چاہے گراما ہو، چاہے مودی جی ہوں، چاہے امت شاہ ہوں، چاہے کوئی بڑے بڑے لوگ ہوں، جب نمرود نہ رہے، شداد نہ رہا، فرعون نہ رہا، حامان نہ رہا، قارون نہ رہا، ابو جہل نہ رہا، جب یزید کا ظلم نہیں رہا تو موجودہ حکمراں کا کیا ظلم رہے گا؟ مجھے اسلام تسلی دیتا ہے کہ موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ جاڑے کا موسم تھا، چلا گیا، گرمی کا موسم آیا، اب گرمی کا موسم بھی جائے گا، بارش کا موسم آئے گا، بارش کا موسم جائے گا، پھر سردی کا موسم آئے گا۔ مانی موسم کا اختلاف مجھ سے کچھ کہتا ہے کہ گھبراؤ مت، موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ رات مجھ سے کہتی ہے کہ ہمیشہ رات نہیں رہتی ہے، دن نکلنے والا ہے۔ دن مجھ سے کہتا ہے کہ دن ہمیشہ نہیں رہتا، رات آنے والی ہے۔ بچپن مجھ سے کہتا ہے کہ بچپن ہمیشہ نہیں رہتا، جوانی آنے والی ہے۔ جوانی کہتی ہے کہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، بڑھاپا آنے والا ہے۔ بادشاہوں کی بادشاہت چھین کے گلی کا اسی بھکاری بنا دیا گیا، صرف اس لیے تاکہ دنیا جانے کہ بادشاہت ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ ایک مزدور کے بیٹے کو حاکم بنا دیا گیا تاکہ دنیا جان لے کہ ہمیشہ کوئی مزدور نہیں رہتا ہے، نہ صحت ہمیشہ رہتی ہے، نہ تندرستی ہمیشہ رہتی ہے، نہ بیماری ہمیشہ رہتی ہے، نہ موسم ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ آندھی، یہ سیلاب، یہ رات دن کی تبدیلی مجھ سے کیا کہتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب undoubtedly in the creation of the heavens and the earth, in the changing of the night and the day are tokens for those who reflect, for those who keep sense۔ یعنی رات دن کا اختلاف، رات دن کی تبدیلی، زمین آسمان کا اختلاف عقل مندوں کی آنکھوں کو کھولنے کی چیز ہے۔ یعنی ان سے نصیحت کی خوراک ملتی ہے، اس سے جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ زندگی کی واستوکتا، ریئلٹی، سچائی کیا ہے، ان حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے حالات کو دیکھنے کے بعد۔ نرفز مت ہو جانا آندھی دے کر، نرفز مت ہو جانا سیلاب دے کر۔ آندھی آئی ہے چلی جائے گی، سیلاب آیا ہے چلا جائے گا، رات آئی ہے چلی جائے گی، بادشاہت آئی ہے چلی جائے گی۔ جب کوئی چیز کو قرار نہیں ہے تو تم نے سمجھ کیسے لیا کہ اسلام خطرے میں آ گیا، مسلمان خطرے میں آ گیا، مدارس خانقاہ میں آ گئے؟ کچھ نہیں رہے گا، نہ بکواس رہے گی، نہ ظلم کی آندھی رہے گی۔ ایک جھونکا ہے، یہ جھونکا چلا جائے گا، کوئی کل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیوں نروس ہو گئے؟ کیوں چہرے پہ مایوسی ہے؟ کیوں اداس ہو گئے؟ میرا خدا حق ہے، میرے خدا کا سارا دستور حق ہے، میرا اسلام حق ہے۔ یہ بتا دے کہ 1400 سال ہو گئے اسلام کے آئے ہوئے، 1400 سال میں کوئی بھی ایک سال ایسا گزرا ہے جس سال میں دشمنی بڑھی، اختلاف بڑھا، مخالفت بڑھی؟ تو مسلمان 5 کروڑ تھے، گھٹ کے 3 کروڑ ہو گئے، مسلمان 3 کروڑ تھے، گھٹ کے 2 کروڑ ہو گئے۔ دنیا کی ساری تحریکیں مخالفت سے کمزور پڑ جاتی ہیں، وقتی طور کے لیے کمزور پڑ جاتی ہیں۔ مولانا بشارت صاحب ہیں، ان کی ایک تحریک ہے، ان کا ایک ایم ہے کہ مجھے اسکول بنانا ہے، مجھے کالج بنانا ہے، مجھے مدرسہ چلانا ہے، چاہے آندھی یا طوفان کچھ بھی آئے، مگر رسول پاک کی حدیث کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے کبھی بند نہ ہوگا۔ لوگ اسکول کالج کھولتے ہیں بزنس کے لیے، چونکہ وہ بزنس کا ایک بہت بڑا میڈیم
ये बहुत बड़ा माध्यम है। मदरसा चलाने वाला बिजनेस क्या करेगा, वो तो भिखारी बन जाता है, वो सिदरा मांगता है, वो ज़कात मांगता है, उश्र मांगता है, मांगता ही रहता है। ऐसा नहीं कि एक साल मांगा अब दूसरे साल आराम से चलेगा मदरसा, नहीं, जब तक ये जिंदा रहेंगे 90 साल तक इसे मांगना पड़ेगा। तो मदरसा चलाने वाला इतना बड़ा जिगर रखता है, वो जिंदगी भर से दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। अपने लिए मांगना जिल्लत है, मुस्तफा के इल्म को फैलाने के लिए मांगना बड़ा इज्जत है। इससे इनका चेहरा कभी मैला नहीं होगा, क्योंकि हुजूर ने इनके लिए दुआ दे दी है, नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लहु। ये सारे उलमा किराम के चेहरे को देख लें, कोई डीआईजी है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई डीएम है, कोई 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला है, कोई गुजरात का मिनिस्टर है, कोई बम्बई का सीएम है, सबके चेहरे को देखें। शुगर ने सबको सूख पे कांटा बना दिया, ब्लड प्रेशर हाई ने सबों के खुशियों को छीन लिया, ब्रेन हेमरेज ने सबों को 2-2 महीने हॉस्पिटल में सुला दिया, चेहरा काला हो गया। आप देख लें मुलायम सिंह को देख लें, आप साहब ठाकरे को देख लें, और बड़े बड़े पुराने मिनिस्टर को देख लें, सूख गए। जो मोटे ताजे थे, अंडा खाते थे, दूध पीते थे, सेब संतरा ड्राई फ्रूट खाते थे, शुगर ने सबका चेहरा सुखा दिया। जो करोड़ों में खेलने वाला है, ये 5000 रुपए मस्जिदों में कमाने वाला, ये सरों पे बरकाती टोपी, ये चेहरों पे मुस्कुराहट, ये आंखों में सुरमा, ये इतना हसीन जमील चेहरा किस वजह से? ना इसके पास 1 लाख रुपए है, ना इसके पास 10 बीघा जमीन है, आखिर किस चीज ने इनको हसीन बनाया है? शुगर का हमला होता भी है तो लाइटली और चला जाता है, उसको बुनियाद उसको उखाड़ नहीं पाता है। चेहरा हरा भरा सिर्फ इसलिए इनका काम ही है महफिल मिलाद में कि हुजूर ने ये कहा, जुमा के खिताब में हुजूर ने ये कहा, ईदैन के खिताब में कि हुजूर ने ये कहा। दुनिया वाला गांधी की बोले, नेहरू की बोले, आइंस्टाइन की बोले, कन्फ्यूशस की बोले, लामार्टिन की बोले, जिसकी बोले, ये सिर्फ मुस्तफा की बात बोलता है कि हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा। तो हुजूर ने दुआ दे दी, अल्लाह उसे तरोताजा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफा की दुआ है। 1 करोड़ कमाने वाला सूख रहा है और 10,000 कमाने वाला गुलाब की तरह खिल रहा है। नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन। बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त काम इन्होंने किया है, और इनके हौसले को मैं सलाम कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जज्बात को सर्द होने से बचाए, हर आने वाला दिन इसको एक नया हौसला, नई उमंग अता फरमाए, तो कौम मुस्लिम की खिदमत करते रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये मदरसा बिजनेस का अड्डा नहीं है, तो भिखारी का अड्डा है। भीख मैं मांगूंगा, मैं मुस्तफ़ा के मेहमान खाएंगे, मगर वह लोग जो बहुत बड़ी दौलतें जमा करते हैं और बहुत बड़ी तहरीक चलाते हैं, मैं सिर्फ इस पर इंडिकेट करना चाह रहा था कि तहरीक कमजोर हो जाती है मुखालफत के बाद। मुमकिन है कि मौलाना साहब आज सेहतमंद हैं, 10 साल के बाद जब कमजोर रहे, क्योंकि आज से 10 साल पहले मैं जब कश्मीर आया था तो दाढ़ी के सारे बाल मेरे सियाह थे। ये हमारे सखी भाई जानते हैं, पहली बार इन्होंने अशरफिया के स्टेज पर मेरा खिताब आज से 12 साल पहले मैंने सुनकर कश्मीर में बुलाया था। उस वक्त न दाढ़ी न सर के कोई बाल सफेद हुए थे। आज देख रहे हैं मैं किस हालत में हूँ। इस 10 साल में 10 से 15-20 बार मैं आ चुका हूँ। अनंतनाग आया हूँ, श्रीनगर आया हूँ, और आपके पुंछ और राजौरी इलाके में सिरकोट में कई बार में आया हूँ। आज दाढ़ी के बाद सफेद हो गए। मुमकिन है कि वो हौसला जो 12 साल पहले था, आज उम्र के बढ़ने की वजह से वो पस्त हो जाए। ये सेहत के ताल्लुक से ये फॉर्मूला है, ये हम जैसे इंसानों के ताल्लुक से ये कानून है कि उम्र बढ़ने से हौसला थोड़ा पस्त होता है, उम्र बढ़ने से आदमी की सेहत थोड़ी कमजोर हो जाती है, या फिर दुश्मनी इतनी बढ़ी कि आदमी तहरीक को छोड़ देता है। दुश्मनी इतनी बढ़ी कि आदमी की तहरीक कमजोर हो जाती है। ये तो नेचुरल बात है कि जब 50 दुश्मन रहेंगे, 5 फॉलोवर रहेंगे, वहां तो वक्ती तौर पर नर्वसनेस आ ही जाएगा। अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में आ गया, ये बताए आपका चेहरा उदास क्यों है, लोग मायूस क्यों है, लोग परेशान क्यों है? 1500 साल की तारीख मेरे सामने मौजूद है। इस्लाम का वो पहला दिन जिस दिन पैगंबर आज़म ने रिसालत नबूवत का ऐलान फरमाया था, आपके काफिले
काफिले में शरीक होने वाला पहला शख्स कोई दूसरा नहीं था, वह सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आपकी शरीक हयात हम मुसलमानों की माँ थी। उन्होंने लब्बैक कहते हुए वो कलमा पढ़ी। दूसरा शख्स जो शामिल हुआ वो आपका गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा था। तीसरा शख्स जो शामिल हुआ वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी थी। चौथा शख्स जो शामिल हुआ वो मौला अली शेर खुदा थे। ये चार लोगों ने सबसे पहले कलमा पढ़ा। उसके बाद जब काफिरों को भनक लगी, ये चार लोगों ने कलमा पढ़ा है, यहाँ तक कि 4 से 10 हो गए, 10 से 20 हो गए। 3 साल के अंदर में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। काफिरों ने दुश्मनी बढ़ा दी कि जो कलमा पढ़ेगा सूली पे लटका दिया जाएगा, जो मोहम्मद अरबी का साथ देगा उसे चटाई में बांध के धुआं दे के मार डाला जाएगा, उसके सीने पे चटियल मैदान में पत्थर रख के मारा जाएगा। मैं तो आराम से खा रहा हूँ, कश्मीर में रह रहा हूँ, बिहार में आम खा रहा हूँ, कश्मीर में सेब खा रहा हूँ, बम्बई में कपास की खेती कर रहा हूँ, मेरी मस्जिदों से अजान हो रही है, मेरे जलसे हो रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, हर दिन मदरसा कायम हो रहा है, आराम से खा पी रहा हूँ। कलमा पढ़ने की वजह से ना मेरे सीने पे पत्थर रखा जाता है, ना मुझे फांसी पे लटकाया जा रहा है, ना मुझको जुदा किया जा रहा है। इक्का दुक्का कहीं कोई वारदात हो और उससे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम का वो पहला दौर कि कलमा पढ़ेगा सूली पे लटका दिया जाएगा, कलमा पढ़ेगा चटाई में बांध के धुआं दिया जाएगा। अगर कोई मोहम्मद अरबी का साथ दिया उसको उसका सोशल बायकॉट किया जाएगा। मगर दीवानों ने कसम खाया कि तेरे बस में जो कुछ है तू कर डाल, मगर मैं ज़मीर का सौदा नहीं करूंगा, मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा। ये जान तो मोहम्मद अरबी के कदमों पे कुर्बान होने को तैयार है। यानी उन्होंने तकलीफों को मुस्कुराते हुए झेलकर इस्लाम की कश्ती आगे बढ़ती गई। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, मुखालिफत और बढ़ती चली गई। 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, मुखालिफत और बढ़ती गई। 1 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। लोगों ने कहा था जब तक कायद इनका जिंदा है तब तक तो इनके फॉलोवर इनके साथ में है, लेकिन जिस दिन मोहम्मद अरबी का फिसाल हुआ, मदीने की ईंट से ईंट बजा दूंगा। यहूदी मुंतजिर था, नसरानी मुंतजिर थे, मदीने के मुनाफिक अंदर से वो मुंतजिर थे, और जो कुफार मुशरिकीन बचे थे वो भी मुंतजिर थे। मुशरिक भी मुंतजिर है, मदीने की ईंट से ईंट बजा दूंगा। यहूदी मुंतजिर है, ये जाए सामने से हटाए, बस जो लोग इनके साथ इर्द गिर्द जमा हुए हैं सबों को मैं मुंतशिर कर दूंगा। आनी दुनिया मुंतजिर है मुस्तफा जान रहमत के पर्दा फरमाने की, ये चाहे तो मैं इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन कुर्बान मुस्तफा जान रहमत की इज्जत और अज़मत पे, सरकार की हिकमत और तदबीर पे, ऐसी मजबूत बुनियाद पर इस्लाम की इमारत रखी थी कि यूरोप का दानिश्वर आज कहता है कि इस्लाम को क्या दुनिया मिटा पाएगी। इस्लाम तो उसी दिन इस्तेमाल हो चुका था जिस दिन मक्का के 1200 लोग इन 313 को मारने को आए थे। अब प्लान था कि 1 मिनट में इन अनारियों को मैं मार दूंगा। मदीना के लोग खेती बाड़ी करने वाले ये क्या जाने कि जंग कैसे होती है। ये अनाड़ी आए हैं और मक्का के सरगना चौधरी थे, मक्का के मशात जंगी लोग थे जिन्होंने मैदान जंग में नुमाया कारनामा अंजाम दिया था। वो सारे लोग मौजूद थे कि 1 सेकंड मिनट में इन 313 को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। उधर तलवार थी, उधर 1200 घोड़े थे, 1200 ऊंट थे, उधर राशन की फरावानी थी, उधर बार बार मक्के से कमक आ रही थी, फौजी मदद आ रही थी, और यहाँ 313 मुजाहिद निहत्थे थे, 8 घोड़े थे, 70 ऊंट इनके पास है और मामूली मिसाल में तलवार है। और फिर एक ऊंट पर 3 लोग सवार हो गए, पैदल चल के मदीना से गए हैं 165 किलोमीटर दूर, थक के चूर हो चुके थे। यानी पैदल चल चलकर ये थके मांगे थे, वो ताजा दम थे, इनके पास हौसला था, इनके पास जज्बा था, उनको जान बचाने आए थे और ये सब जान देकर इस्लाम बचाने गए थे। जो जान बचाने के लिए मैदान में आएगा वो कभी उसके अंदर हौसला न होगा, और जो जान देने मैदान में जाएगा उसका हौसला कभी पस्त न होगा। या 313 जान देने गए थे और वो सबके सब जान बचा के और फतह भी हासिल करने आए थे, लेकिन जिन्होंने 1 घंटे में मैदान जीतने का सपना देखा था, 1 घंटे के अंदर जंग का नक्शा ऐसा पलटा कि 313 ने उन बड़े बड़े सरगनाओं को मौत के घाट उतारा। 70 उसके जंगी बहादुर सरदार मारे गए, 70 उसके सरदार कैदी बना लिए गए, उनके सारे मान पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। यानी हौसला मुस्तफा की क़यादत ने जंग का नक्शा बदल दिया। आज यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम कैसे मिटेगा। ये तो उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन मैदान बद्र में मुसलमानों को
فتح مبین حاصل ہوئی تھی، یعنی وہ فتح عظیم تھی جو آج تک قیامت تک اسلام کو اسٹیبل کر چکا ہے۔ مسلمانوں کے پاس جذبہ شہادت تھا، ان کے پاس مصطفیٰ کی قیادت تھی، ان کے پاس اللہ کی مدد تھی، ان کے پاس فرشتوں کی نصرت تھی۔ یہی میرا سارا سرمایہ ہے۔ کافروں نے میدان بدر میں بھی نہیں چھوڑا، مکہ سے قریب مدینہ کے قریب آ کر ٹارچر کیا۔ وہ منتظر تھے کہ ان سے ان کی موجودگی میں مسلمانوں کو شکست دینا بڑا آسان ہے، مگر پھر بھی وہ اور ہمت کر کے دوسرے سال مدینہ کے 4 کلومیٹر دور میدان احد میں وہ تباہ آزمائی کرنے آ گئے، اور پھر اس سے بھی جی نہیں ہرا۔ غزوہ خندق کے موقع سے پورے مدینہ کو کافروں نے گھیر لیا، یہاں تک کہ جنگوں کے سائے میں اسلام آگے بڑھتا رہا۔ کوئی بتا دے کہ بدر کے بعد اسلام کمزور ہوا، احد کی لڑائی کے بعد اسلام کمزور ہوا، غزوہ خندق کے بعد اسلام کمزور ہوا، جب مدینے کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیرا، کیا اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد گھٹ گئی؟ لوگوں کا حوصلہ پست ہو گیا؟ لوگوں نے بیوی بال بچوں کی محبت میں مصطفیٰ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا؟ ساتھ دینے کا مطلب ہے گھر سے بے گھر ہونا، بال بچوں کو موت کے منہ میں ڈال دینا۔ کوئی بتا دے کہ بال بچی کی محبت میں ایک شخص نے بھی کلمہ چھوڑا، مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑا؟ نہیں، بلکہ سرکار تنہا مکہ سے نکل کے مدینہ آئے تھے ہجرت کی رات اپنے دوست کے ساتھ، لیکن 10 سال کے بعد 1 لاکھ کا ٹھاٹھے مارتا مجمع میدان عرفات میں مصطفیٰ کے سامنے موجود تھا۔ مخالفت بڑھتی گئی، مصطفیٰ کے وصال کے منتظر تھے لوگ۔ سرکار کے وصال کے بعد صدیق اکبر کے عہد میں 2 سال تک اسلام اور اسٹیبل ہوتا چلا گیا۔ ان کے وصال کے بعد فاروق اعظم کے 10 سالہ پیریڈ میں اسلام عرب سے نکل کر روم پہنچا، ایران پہنچا۔ عثمان غنی کے 12 سالہ پیریڈ میں اسلام نکلا، وہ قسطنطنیہ افریقہ تک پہنچ گیا۔ مولا علی کے زمانے میں تھوڑا سا ہنگامہ رہا، مولا علی کی شجاعت نے اسلام کو اور اسٹیبل کیا، اور جو کچھ کمی رہ گئی حسین اپنے بال بچوں کو لے جا کر میدان کربلا میں کٹوا کے اپنی جان دے کر مصطفیٰ کے مذہب کو بچایا۔ پھر کیا تھا؟ وہ اسلام عرب سے نکلا، بادل بن کر آندھی بن کے ہندوستان میں چھا گیا، چائنا جاپان میں چھا گیا، پوری دنیا پہ چھا گیا، اور مخالفت کرتی چلی گئی۔ پہلے مکہ میں اسلام تھا، دشمن اس مکہ تک محدود تھے، پھر اسلام مدینہ آیا، دشمن مدینہ کے ہو گئے، اب اسلام یورپ میں پہنچا، اس یورپ میں اسلام کے دشمن ہو گئے، اسلام ہندوستان پہنچا، ہندوستان کے کچھ منافق اور کافی اسلام کے دشمن ہو گئے۔ جیسے جیسے اسلام کا دائرہ پھیلتا گیا، دشمنی بھی دشمنوں کی بڑھتی چلی گئی۔ لیکن کوئی پتا تو دے کہ ایک رات کے لیے اسلام کمزور ہوا، ایک دن کے لیے اسلام کمزور ہوا، 1 کروڑ کے مسلمان دشمنوں کو دے کر گھٹ کے 50 لاکھ ہو گئے، 50 لاکھ سے گھٹ کے 25 لاکھ ہو گئے۔ نہیں، آج کا دن ہے 150 کروڑ کلمہ پڑھنے والا اپنے نام کے ساتھ سب سے محمد کو جوڑے ہوا ہے۔ محمد اکبر، محمد احمد، محمد سمر، محمد احسن، محمد قمر، محمد سیف، محمد بکر، یہ 150 کروڑ کی محمدی فوج جو دنیا کے سارے ممالک میں پھیل گئی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ مخالفت بڑھتی جائے گی، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت رسول کانفرنس، سبحان اللہ ہے نور خدا، کفر کی حرکت میں خندہ زن، تھوکوں سے چرا بجھایا نہ جائے گا۔ چاہے کچھ بھی کرے، آپ مومن بن کے زندہ رہیں۔ میرا سب سے بڑا سرمایہ، میری سب سے بڑی پونجی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے۔ وہ محبت جب تک سلامت تھی، میرے گھر میں امن تھا، میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، سماج میں رہنے کو من کر رہا تھا، جی کر رہا تھا۔ آج سماج رہنے کے قابل نہیں رہا، آپس میں دشمنی، آپس میں اختلاف، آپس میں حسد، آپس میں گھمنڈ نے ہماری دوریاں بڑھا دی ہے۔ ایک مسجد میں تو امام وہ بھی آپس میں محبت سے نہیں رہتا ہے، ایک سماج میں 50 لوگ وہ محبت میں نہیں رہتے، محبت سے نہیں رہتے۔ عید کا دن سارے لوگ اپنے گھر میں رہتے، کوئی کسی سے ملنے نہیں جاتا ہے۔ کیوں نہیں جاتا؟ کہ وہ مجھ سے ملنے آئے گا، میں کیوں سے ملنے جاؤں؟ آج میرا گھر سوکھ گیا، آج میرا سماج رہنے کے قابل نہیں رہا۔ آج آفس میں، دفتر میں، کالج میں، ہر جگہوں پہ انتشار ہے، گھمنڈ ہے، اختلاف ہے۔ تو ہماری بدعملی نے میرے چہرے کے سکون کو چھینا ہے، میری بدعملی نے میرے گھر کو اجاڑ دیا ہے۔ لیکن جہاں تک سوال رہا کہ دوبارہ جس دن عشق کی کھیتی ہری بھری ہو گئی، دنیا کے سارے لوگوں نے خوشیاں حاصل کرنے کا انہوں نے ٹرینڈ چنا کہ خوشی کہاں سے ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا۔ انہوں نے نجی فارمولا اپنایا کہ دنیا میں بیماریاں بڑھ گئی، دنیا میں کینسر بڑھ گیا، دنیا میں ایڈز کی بیماری بڑھ گئی، دنیا میں بے شمار
इख्तलाफात बढ़ गए, सब जंग की बात कर रहा है, इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, हल क्या निकलेगा? किसी ने कहा कि न्यूटन का फॉर्मूला अपनाया जाए, साइंस पढ़ा जाए, साइंस पर तजर्बा किया जाए, ये साइंस सारे प्रॉब्लम का हल बता देगी, साइंस सारे प्रॉब्लम का हल बता देगी। आज कोरोना काल में आज 2-2.5 साल गुजर गए, चाइना जापान को साइंस पे बड़ा घमंड था, अमेरिका को बड़ा गुरूर हासिल था कि आज बीमारी आएगी, कल उसकी दवाई मेरे पास मौजूद है। क्या नमाज, क्या रोजा, क्या हज, क्या ज़कात, क्या मौलाना, क्या मौलवी, क्या दाढ़ी, क्या मस्जिद, क्या ईदगाह, इसकी बात क्यों करता है? साइंस पढ़ो, साइंस तेरे सारे प्रॉब्लम का हल बता देगी। जैसे गुरूर था कि आज बीमारी, कल उसकी दवाई, 2.5 साल गुजर गए, वैक्सीन के नाम पे पानी तो सामने आया, लेकिन कोई बता दे कि कोई मेडिसिन आई है, कोई दवाई मार्केट में आ गई है कि कोरोना हुआ ये मेडिसिन खा ले? नहीं, आज भी वही राग आलापा जा रहा है। अगर कोरोना की दवाई नहीं आई है, उससे बचना है तो हाथ लगातार धोते रहिए, हाथ लगातार धोते रहिए, नाक और मुंह को मास्क से ढक के रखिए, क्योंकि बीमारी का कीड़ा नाक से घुसता है, आंख मुंह से घुसता है, हाथ से घुसता है। मैं कहता हूं इस तरक्की याफ्ता जमाने में इस बीमारी से बचने का हल बताया जा रहा है कि हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। अमेरिका आसमान पे उड़ रहा है, चाइना जापान कोई आज कार बनाए, इंडिया कल उसके पास नकल मौजूद है। मुल्क मेरा ही हिंदुस्तान है, मगर सारा माल मंडियों में चाइना का फैला हुआ है, ये मुल्क हमारा है, मंडी में सारा माल जापान का फैला हुआ है। यानी माशी तौर पर हमारे मुल्क को चाइना ने गिरफ्त में ले लिया है। अगर दम है तो चाइना के सारे माल का की मुखालफत की जाए, उनके प्रोडक्शन की मुखालफत की जाए। नहीं जी नहीं सकते, क्योंकि उनका बच्चा पढ़ा लिखा है, उनका घर फैक्ट्री में तब्दील हो चुका है, उनके पास इल्म है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास विकास करने का जज्बा है, यहाँ लड़ने का जज्बा है। इसको मारना है, उसको पीटना है, उसको भगाना है, उसको भगा देना है, माइक छीन लेना है, ये कर देना है, वो कर देना है। इसलिए हम भिखारी हो गए। मेरा हिंदुस्तान चाइना जापान के माल की बिकने का बाजार बन चुका है, जापान और अमेरिका के माल की मंडी बन चुका है। यहाँ कदम कदम पे लड़ाई, इख्तलाफ, इंतशार, इल्म से काम लेना होगा, तजर्बा से काम लेना होगा। तब हर आदमी को आगे फ्यूचर के लिए डेवलपमेंटल प्लान बनाना पड़ेगा, तब जंग खुद बहुत खत्म हो जाएगी। और जहाँ बेकारी होगी, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, वहाँ मार धाड़ की बात है। हम जरा गौर से सुनिएगा, चाइना को गुरूर था अपनी टेक्नोलॉजी पे, लेकिन आज तक कोरोना की दवाई उसके पास नहीं आई। जापान को घमंड था अपनी टेक्नोलॉजी पे, मगर दवाई नहीं आई। अमेरिका को घमंड था अपनी टेक्नोलॉजी पे, दवाई नहीं आई। वही कहा जा रहा है कि हाथ धोते रहिए, यानी इस बीमारी का हल यही है कि हाथ धोते रहिए जब तक दवाई नहीं आई है। मैं कहता हूं जहां आज दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर पहुंची है कि हाथ धोते रहिए, कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे 1400 साल पहले हुजूर ने कहा तेरे पैदा होने का मकसद अल्लाह की इबादतों में सबसे बड़ी इबादत नमाज़े पंजगाना। नमाज़े पंजगाना के लिए सबसे पहले वजू करना फर्ज है। वजू में सबसे पहले हाथ धोना है, कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना है। यानी जिन रास्तों से बीमारी के कीड़े अंदर घुसते हैं, उन रास्तों का प्रोटेक्टर है वजू, उन रास्तों का रक्षक है वजू, उन रास्तों का मुहाफिज है वजू। तो हाथ धोते रहिए। कल तक मैं एयरपोर्ट पे हाथ धोता था, ये कहते थे कि डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज लाइफ, यानी जल को बर्बाद मत कीजिए, जल ही जीवन है। मैं एयरपोर्ट पे हाथ धोता था, वजू करता था। मैं कहता था जिस रब ने जल दिया है उसी रब को सजदा करने के लिए मैं जल से वजू कर रहा हूँ। और फिर तुम क्यों ऐसा कह रहा है? डोंट वेस्ट वाटर, वाटर बर्बाद मत कीजिए। और आज कहते हैं कि दिन में 10 बार हाथ धोइए, दिन में 20 बार हाथ धोइए। लगातार 2.5 साल से कहा जा रहा है कि दवाई नहीं आई है, हाथ धोते रहिए। तो जहां सेहतमंद रहने के लिए हाथ धोने का नुस्खा अमेरिका और चाइना के वैज्ञानिक के दिमाग में आज आया है, यह नुस्खा मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। वजू कर सेहत यहां मिलेगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। यानी दोनों जहां की वाह वाह, जिंदाबाद, हक अदा करेगा। सुभान मैं
कह रहा हूँ कि सिर्फ आप यकीन रखें, विश्वास रखें कि जिस पैगंबर का दामन आपने थामा है उसका कोई जवाब नहीं है। ना पैगंबर आजम की तदबीर का जवाब है, ना पैगंबर आजम की हिकमत का जवाब है। सरकार दो जहां से सच्ची मोहब्बत मेरे सारे प्रॉब्लम्स का हल देती है। आका इस्लाम से मोहब्बत मेरी कमजोर हो गई है, उसी कमजोरी की वजह से आज हम दूसरों के हाथों के खिलौना बन गए। दूसरे मुझे उखाड़ने की बात कर रहे हैं, भगाने और मारने की बात कर रहे हैं। यानी जो पाखाना को पाक समझता है वह मुझ जैसे पापों को मिटाने का सपना देख रहा है। यानी जो जिसकी पेशानी बंदर और चुचंदर के सामने झुक रही है वो मुझे मिटाने की बात कर रहा है। जो बंदर को खुदा कहे, चुचंदर को खुदा कहे, जो छिपकली को खुदा कहे, जो बैल को खुदा कहे, जो खिंजीर को खुदा कहे, जो सांप को खुदा कहे, यानी कीड़े मकोड़ों के सामने पेशानी फेंकने वाला, दरिया के सामने पेशानी फेंकने वाला, सूरज के सामने पेशानी फेंकने वाला, चांद के सामने पेशानी फेंकने वाला, दुनिया की सबसे जलील तरीन कौम है वह मुशरिक, जो एक ने अपने मन के मुताबिक लाखों खुदाओं के सामने पेशानी झुकाया है। ये बता दे कौम मुस्लिम जो एक खुदा का परस्तार है, जो एक खुदा के सामने 5 टाइम सर को झुकाता है, जो खुदाए वाहिद पर यकीन करता है, वही इज्जत देने वाला, वही जिल्लत देने वाला, वही रुज़ी देने वाला, वही मौत देने वाला, वही रब है जिसने मेरे मुस्तफा को पैदा फरमाया, उसे लाजवाब बनाने वाला, वही रब की सबसे बड़ी दलील कुरान करीम मेरे सामने मौजूद है। रब की सबसे बड़ी दलील बनकर मुस्तफा आ गए हैं। एक खुदाए वाहिद को पूजने वाला और छिपकली का पूजने वाला, बंदर का पूजने वाला, सांप का पूजने वाला, इन दोनों में जब मुकाबला होगा तो क्या छिपकली उसको बचाएगी, क्या बंदर उसको बचाएगा, क्या सांप उसको बचाएगा, क्या नदी उसको बचाएगी? नहीं, यकीन रख तेरा खुदा बचाएगा। खुदा कोई जरूरत नहीं है, उदासी की कोई जरूरत नहीं है, चेहरा हमेशा खिला रखें। जब मैं मस्जिदों को उजाड़ना शुरू किया, नमाज में नहीं पढ़ी, तब दुश्मनों का हौसला बुलंद हुआ कि माइक को फेंक देता हूँ। लेकिन आप वहां बकवास नहीं, चाय की दुकान पे चुस्की लेकर बिना वजह का तबसरा नहीं, सिर्फ एक पॉजिटिव तबसरा। एक मोहल्ले में 1000 की आबादी है, 995 लोग व्हाट्सएप यूट्यूब चला चला के रात भर उन्होंने नींद खराब की है। और सुबह के टाइम में जब रहमत का फरिश्ता रहमत लेके आता है उस वक्त मेरा छोकरा जाके बिस्तर पे मुर्दार की तरह सोने चला जाता है। यानी मस्जिदों को मैंने बर्बाद किया, दूसरों ने नहीं। 995 सोए हैं। अब 5 जुम्मन जो 25 साल से मस्जिद की आबरू बचाता है वही जुम्मन मस्जिद में जा रहा है। रमजान के दिन में वही जा रहा है, 2-4-10 लोग पढ़ गए। मैं कहता हूँ कि माइक की आवाज थी ताकि लोग नमाज पढ़ने आ जाए, अजान इसीलिए थी कि ताकि लोग नमाज पढ़ने के लिए आ जाए। लेकिन हमने अजान की आवाज पे कान न धर के बिस्तर को मैंने गर्म करता रहा, तो आखिर हम जगेंगे कैसे, इस पर बोलेंगे हम कैसे? तो अब उन्होंने जगाने का काम किया है, यानी उसकी जबान से माइक हटाने की बात ये हमारे जगाने की बात है। तो तुम चाय की दुकान पे चुस्की मत लेना, छोड़ दे व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल, छोड़ दे यूट्यूब का गलत इस्तेमाल, छोड़ दे नंगी तस्वीरों को देखना, वरना जवानी में खोखला हो जाएगा, शादी से पहले हिजड़ा नामर्द हो जाएगा, बीवी के काबिल नहीं रहेगा। जब बीवी के काबिल नहीं रहेगा तो बीवी तेरे ड्राइवर के साथ जाएगी, बीवी हॉकर के साथ जाएगी, बीवी चादर बेचने वाले के साथ भागेगी। अगर सेना को रोकना है तो ताकतवर बनना पड़ेगा, और अगर ताकतवर बनना है तो गुनाह को छोड़ना पड़ेगा, निगाहों की हिफाजत करनी पड़ेगी, जबान की हिफाजत करनी पड़ेगी, और नमाज सजदों में रूहानी ताकत ढूंढना पड़ेगा। जिस दिन तुमने सुना कि माइक फेंकने की बात काफिर कर रहे हैं तो तुम खामोश हो ये बोल दे ये मेरी बदअमली से इनका हौसला बुलंद हुआ है, वरना चुचंदर के पुजारी वो अजान के खिलाफ उसे बोलने की हिम्मत कैसे हो सकता है? अब मैंने भी कसम खा लिया है, तुम कसम खा लो कि तुमने माइक फेंकने का प्लान बना लिया है। अब हमने अजान की आवाज पे नमाज पढ़ने का प्लान बना लिया है, नमाज में छोड़ने का प्लान बनाया है। जिस दिन तुम्हारे नौजवान बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत नमाजी बन गए, ये काफिर के दिल में अल्लाह हैबत डाल देगा, और जो ज़बान खोल रहा है कल वो तेरा तलवा चाटेगा, तेरा पाँव छूटेगा। मेरी
बदअमली ने उनके हौसले बुलंद कर दिया है, मेरी बेराहती ने उनके हौसले बुलंद कर दिया है। सारे प्रॉब्लम्स का हल सारी दुनिया को मालूम है कि इस्लाम से हट के कुछ नहीं है, क्योंकि आने वाला मुस्तकबिल मेरा है, आने वाला दिन हमारा है। पहले ही आप नहीं जाने, आप मुसलमान होने के नाते बोले आने वाला मुस्तकबिल मेरा खतरे में है, मेरा परेशान कुन है। लेकिन मैं यूरोप के एक दानिश्वर की बात में करता हूँ। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, जिसकी किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, जिसकी किताब JNU में चलती है, जिसकी किताब कश्मीर के स्कूल और कॉलेजेस में चलती है, जिसकी किताब मैंने खुद ग्रेजुएशन में पढ़ी है, जिनकी किताब पोस्ट ग्रेजुएशन में MA करते हुए मैंने इसके ड्रामा को मैंने पढ़ा है, यानी पैदा हुआ यूरोप में, कितना बड़ा काबिल शख्स था वो, पढ़ा लिखा एजुकेशनल पर्सनैलिटी का मालिक, कि उनकी किताब इंडिया में चल रही है। इसका मतलब है कि वो एक बहुत अजीम शख्सियत का नाम है, डॉक्टर बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ ने इस्लाम और इस्लाम की तारीख के मुताले के बाद उन्होंने आज से कई साल पहले उन्होंने अपने फीलिंग्स ऑफ हार्ट को एक जुमले की शक्ल दिया था, यानी जज्बात दिल को एक जुमले की शक्ल देते हुए कहा था, ऐसा लग रहा है कि लोग तबाही का तमाशा देखने के बाद इसे सुकून और चैन की तलाश है, तो तलाश करने में किसके पास जाएंगे? इस्लाम की जामियत, इस्लाम में जो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक सारे प्रॉब्लम्स पर जो सैर हासिल गुफ्तगू की गई है, जो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया गया है, वो कहते हैं कि किसी दूसरे मजहब का मुस्तकबिल इतना रोशन नहीं है कि आने वाले दिन में यूरोप पे वो छा जाए, यूरोप की में हुकूमत उसकी हो जाए। वो गैर मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, मगर वो क्या कहता है? इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। वो कहता है आने वाले 100 साल के भीतर सिर्फ इंग्लैंड नहीं, यूरोप महाद्वीप में, इंग्लैंड एक मुल्क का नाम है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट बर्रे आज़म का नाम है, यूरोप में तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक 90% यूरोप में मौजूद है। बेल्जियम यूरोप में है, हॉलैंड यूरोप में है, फ्रांस यूरोप में है, जर्मनी यूरोप में है, यानी सारे डेवलप्ड कंट्रीज, अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप में है। तो बर्नार्ड शॉ कहता है आने वाले 100 साल के अंदर सिर्फ इंग्लैंड नहीं, पूरे यूरोप बर्रे आज़म में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है, वो मजहब इस्लाम बनने वाला है। यानी इस्लाम मस्जिदों ही में नहीं रहेगा, खानकाहों में नहीं रहेगा, हुकूमती सतह पर मजहब इस्लाम का डोमिनेंट पावर रहेगा, हुकूमती मजहब इस्लाम बनेगा। हम कहते हैं मेरा मुस्तकबिल खतरे में है, और वो शख्स कहता है आने वाला दिन इस्लाम का है। और वो कहा कैसे? हदीस में हुजूर ने कहा है ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदनियु वला फग्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए ज़मीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। इसलिए खुश हो जाओ, हुजूर सच्चे, हुजूर की हदीस सच्ची, हुजूर का पैगाम सच्चा। अमेरिका से लेकर मलेशिया तक कोई पुरुष का घर नहीं बचेगा, मगर वहां इस्लाम का कलमा दाखिल होगा। कोई फ्लैट नहीं बचेगा तो इस्लाम का कलमा दाखिल होगा, और कोई घर नहीं बचेगा तो इस्लाम का कलमा दाखिल होगा। हुजूर ने कह दिया है आने वाला दिन इस्लाम का, आने वाला वक्त इस्लाम का। अज़ान की आवाज दबेगी नहीं। आज शहर में 50 मस्जिद है, आने वाले दिन में हर घरों से अज़ान की आवाज बुलंद होती है। आने वाले वक्त में हर घर से अज़ान की आवाज बुलंद होगी। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदनियु वला फग्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रोए ज़मीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। इस्लाम हक है। हम थोड़ा सा डैमेज होते हैं क्योंकि मेरी मस्जिदें वीरान हो रही है, मेरा मदरसा वीरान हो रहा है। आज हम परेशान हैं, मदरसे में बच्चों को नहीं भेजना, वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, यतीमों के बच्चे पढ़ते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि वहाँ कुरान करीम की तालीम होती है। कुरान का कोई जवाब नहीं, और जिस दर्स का हमें कुरान की तालीम हो उस दर्स का कभी कोई जवाब नहीं है, और हदीस का कोई जवाब नहीं, जो हदीस की तालीम हो कभी कोई जवाब नहीं। पर मेरी सोच काफिरों की बातें पढ़ पढ़ कर, उनके अखबारात का मुताला कर करके, यूट्यूब व्हाट्सएप पे उनकी बातें पढ़ पढ़ कर इस तरह सोच मेरी गिर गई कि मदरसे में गरीबों का बच्चा, यतीमों का बच्चा, मिस्कीनों का बच्चा, देहातियों का बच्चा, जो कमजोर है स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उसका बच्चा पढ़े।
पढ़ेगा। इसे मदरसा हो गया गरीबों के पढ़ने की जगह। स्कूल कॉलेज में जो मदरसे के नाम पे पैसा कमाते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में डाल कर ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कई करोड़ कमाएगा, छोटे बड़े शहरों में घर बनाएगा, नीचे भी घर बनाएगा, ऊपर भी घर बनाएगा, दिल्ली में घर बनाएगा, मुंबई में घर बनाएगा। यानी सिर्फ घर, मकान, गाड़ी, छगड़े की सोच मेरी हो गई कि हम घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा से खाएंगे और पिएंगे, मौज मस्ती की लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे। यही चर्चा मेरे घर में, यही चर्चा मेरे दफ्तर में, यही चर्चा दोस्तों के दरमियान, हर जगह यही चर्चा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि इंसान कहाँ मिल रहा है, इंसान है कहाँ, कहाँ तलाश करो। ये आदमी जबान से बोलता है मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, और ये दिल से मुझसे बुग़्ज़ रखता है। इसको मौका मिले तो पीठ पे खंजर भोंकने को तैयार रहता है। इसकी मुस्कुराहट में, इसकी मुस्कुराहट में जादू है। ऐसा लगता है कि कत्ल कर देगा, मगर अंदर से इसके सीने में मेरे कई हसद और बुग़्ज़ है। आदमी नहीं है ये आदमी नहीं। मैं खुश होता हूँ, ये रोता है। मेरे घर में कोई खुशी आती है, इसके पेट में दर्द होता है। मेरे घर में कोई मैयत होती है, ये ताली बजाता है। वो इंसान है क्या जो पड़ोसी की तकलीफ को देखने के बाद रंजीदा हो जाए? वो इंसान है क्या जो पड़ोसी को आराम में देखकर ये रंजीदा हो जाए, पड़ोसी को तकलीफ में देखकर ये मुस्कुराने लगे? नहीं, असल में पड़ोसी और इंसानियत का हक ये था जब सामने वाला साथी रोए ये भी गमज़दा हो जाए, वो मुस्कुराए, उनको मुबारकबादी पेश करे। लेकिन वो कहते हैं इंसान कहाँ मिलेगा? ये पड़ोसी है मगर भेड़िया है, ये समझी है मगर भेड़िया है, ये दामाद है मगर मुखलिस नहीं है, ये मेरा कजिन चचेरा भाई है मगर अंदर से मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। अब ये तन्हा है, ये मेरा उस्ताद है, इसका नजरिया सही नहीं है, ये मेरा शागिर्द है, इसकी सोच सही नहीं है। यानी लोग कहाँ है, इंसान कहाँ है? इंसान वो है जो दूसरों के दर्द में काम आए, जो अपना कुर्बान करके दूसरों को फायदा पहुंचाए। जापान के लोग कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। हिंदुस्तान, चाइना कहता है द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। अमेरिका बोलता है मकान, गाड़ी, छगड़ा नहीं, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए वही इंसान है। मोदी जी कहते हैं ग्रेजुएट बनने के बाद नौकरी की तलाश में रेल की पट्टी मत उखाड़िए, आप पोस्ट ऑफिस को मत जलाइए, पकौड़ा बेच के खाइए। पढ़ने का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं है, पढ़ने का मकसद अच्छा इंसान बनना है, सिविलाइज बनना है, सब ये बनना है, अच्छा इंसान बनना। बड़ा अच्छा फॉर्मूला उसने दिया। लेकिन आज लोग नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। अब नौकरी नहीं मिली तो आप रेल की पट्टी को उखाड़ो, नौकरी नहीं मिली पोस्ट ऑफिस को जलाओ, नौकरी नहीं मिली एटीएम में डकैती करो। पढ़ा लिखा आदमी डकैत बन रहा है, मिनिस्टर रिश्वतखोर बन रहा है, ऑफिसर की कुर्सी पर बैठने के बाद हरामखोर बन रहा है। 1 लाख महीना ट्रैफिक पुलिस की 50,000 महीना है, उससे पेट नहीं भरता। वह 10 रुपए की खातिर सब्जी बेचने वाली के सामने सलील और गुस्सा हो रहा है। एक लारी को रोक के उसके 5 रुपए लेकर उसका पेट भर जाएगा। 50,000 रुपए गवर्नमेंट देती है, फिर भी सब्र नहीं हुआ। 5 रुपए की खातिर रात भर नींद खराब करके दूसरों के सामने भीख मांगता है। उसका काम था कि ट्रैफिक के निजाम को चुस्त दुरुस्त करना, उसके बदले में गवर्नमेंट उसको 60,000 महीना दे रही है, लेकिन एक 60,000 से पेट नहीं भरता है। तो 5 रुपए की खातिर वो दूसरों के सामने सलील और गुस्सा होता है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं आदमी कहाँ है? एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, मगर वो कमीशन लेता है मेडिसिन की दुकान से, पैथोलॉजी से, वो नॉर्मल लेनी को सिजरिंग करवाता है। ये पढ़ा लिखा डॉक्टर भेड़िया है, दरिंदा है, दूसरों की जमीन बेचवा के अपना आशियाना बनाता है, दूसरों को कंगाल बना के अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाता है। ये डॉक्टर की सूरत में भेड़िया है, दरिंदा है। 10 रुपए की दवाई से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, उसका घर कैसे बनता, उसका बेटा अमेरिका में कैसे पढ़ेगा? इसलिए इस डॉक्टर ने चावल का रास्ता इख्तियार कर, छूट का रास्ता और गरीब की जमीन बेचवाने का रास्ता, उसके जेवरात को गिरवी रखवाने का रास्ता। लोग कहते हैं डॉक्टर है, इंसान कहाँ है? इंजीनियर है, इंसान कहाँ है? पुलिस वाले हैं, इंसान कहाँ है? हमारा रिश्तेदार है, इंसान कहाँ है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इंसान मिलेगा कहाँ? इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, और मदरसे में उसकी घुट्टी में पिलाया जाता है कि झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है, दूसरों को तकलीफ देना हराम है, जुआ खेलना हराम है, शराब पीना हराम है, अफीम और चरस और ड्रग्स का इस्तेमाल करना हराम है। तो तुमने क्या कहा? ये गरीबों के पढ़ने की जगह है। इससे पहले मदरसे में बादशाह का बेटा पढ़ता था, औरंगजेब का बेटा मदरसे में पढ़ता था, औरंगजेब का पोता मदरसे में पढ़ा, पहले बड़े बड़े बादशाहों के बेटे मदरसे में पढ़ते थे, तब वहाँ इंसान पैदा होता था। जब फैक्ट्री जवान रहती है तो पैदावार ज्यादा होती है, जब प्रोडक्ट
प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो समाज में उस फैक्ट्री की पैदावार नजर आएगी। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, जहां पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उसकी ड्यूटी में क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या मुसीब है, क्या मुफीद है, क्या हार्मफुल है, क्या यूजफुल है, क्या लाभकारक है, क्या हानिकारक है। यही सारा पैगाम नहीं बताया जाता कि पढ़ने लिखने के बाद लाखों कमाना, करोड़ों कमाना, हवाई जहाज पे उड़ना, दूसरों की जमीन पे खासे करना, कब्जा कर लेना। नहीं, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक दस्तारबंदी लपेट पे तक यही पैगाम है। हराम और हलाल की तमीज रखना, जायज और नाजायज का ख्याल रखना, राइट एंड रॉन्ग के दरमियान डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी हमेशा निगाहों के सामने रखना। यानी इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा। जब तक मदरसा जवान था, समाज शरीफों से भरा था, नमाजी से भरा था, कुतुब से भरा था, अब्दाल से भरा था। जब से ये फैक्ट्री को मैंने कमजोर कर दिया, हमने भी कमजोर किया, गवर्नमेंट ने भी इसे आतंकवादी का अड्डा कहा, ये फैक्ट्री कमजोर हुई, मैंने बच्चों को भेजना छोड़ दिया। जब इंसान की पैदावार कम होने लगी तो समाज होंडों से भर गया, मिर्चों से भर गया, लफंगों से भर गया, गुटखा खोरों से भर गया, सिनेमा देखने वालों से भर गया, अफीम का इस्तेमाल करने वालों से भर गया। अब अगर आप सीरियस है ये दोबारा कुतुब नजर आए, अब्दाल नजर आए, शाह साहब नजर आए, वली नजर आए, बुजुर्ग नजर आए, नमाजी नजर आए, एक रास्ता है, इस दरसगाह रसूल को मजबूत करना होगा। जिस दिन मदरसा ये फैक्ट्री जवान हो गई, पैदावार इसकी बढ़ने लगी तो लुच्चों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। दकीकों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होगा। इसलिए इस फैक्ट्री को मजबूत करना होगा, इस दरसगाह को आबाद करना होगा। यहाँ सुकून की बात होती है, यहाँ जीवन कैसे जिए उसकी बात होती है, यहाँ माल कमाने की बात नहीं होती है। यहाँ से उठाएंगे तो 50 लाख आसमान से गिर जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे तो घर से सोने की एक आंधी निकल जाएगी। यहाँ जलसे में आओ, यहाँ से आने के बाद तेरी बीमारी को, तेरे मरीज को शिफा मिल जाएगी। नहीं, यहाँ सिर्फ सुकून और चैन की बात होती है, नेचुरल सिस्टम की बात होती है, जीन हम जिए कैसे उसकी बात होती है। जो बातें मैं करता था कल, हमारे लोगों ने जलसे को उजाड़ दिया और ये बातें दूसरे लोगों ने छीन लिया। अब वहां उपदेश की महफिल हो रही है, अब सब रविशंकर जी आ रहे हैं, लाखों लोग उनकी बात सुन रहे हैं। रविशंकर जी कहते हैं शांति शांति, अमन अमन, सुकून सुकून, चैन चैन। कहां है चैन, कहां है सुकून, कहां है अमन? उन्होंने तरीका अपना लिया। किसी ने कहा कि घर में सोफा गद्दा कीमती फर्नीचर आ जाएगा, मजा मिल जाएगा। किसी ने बोला अच्छा सा घर बन जाएगा, एसी लग जाएगी, मजा आ जाएगा। हम और तुम क्या कमाओगे? हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ज्यादा दौलत जिसके पास मौजूद है वो मुकेश अंबानी का परिवार है, जिनके पास 100 करोड़ की कार मौजूद है। लेकिन उसकी दीवार में कान लगा के सुनो, वहां से रोने की आवाज आती है, सिसकियां भरने की आवाज आती है, करार नहीं है। लता मंगेशकर जी अभी 2 महीना पहले उनका देहांत हुआ, उनसे आज से 10 साल पहले एक इंटरव्यू लिया गया था कि आप शोहरतों के ढेर पर बैठी हैं, आपके पास में अवार्डों का ढेर लगा हुआ है, भारत रत्न का अवार्ड, पद्म भूषण का अवार्ड, ये अवार्ड वो अवार्ड, यानी शोहरत भी है, इज्जत भी है, करोड़ों की बंगला भी है, करोड़ों की कार भी है, 100 से ज्यादा ममालिक का भ्रमण भी आपने किया है, आपके पास ज्वेलरीज डायमंड मौजूद है। आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? कैसा फील हो रहा है? कैसे जिंदगी का सारा मजा मिल गया? मजा मिल गया। इसी मजे की तलाश में लोग नमाज छोड़ करके पैसा कमाता है, इसी मजे की तलाश में ना हराम हलाल की बात ना करो, पैसा चाहिए। हमारे लोग कर रहे हैं उसी मजे की तलाश में, नमाज छूटे, रोजा छूटे, हज छूटे, ज़कात छूटे, अखलाक छूटे, कुछ भी हो मगर माल चाहिए। सबको, सबके दिमाग में जुनून चाहे, माल चाहिए। चाहे मस्जिद की प्रॉपर्टी बेच के हो, चाहे बाप की जबात को ज़बह करके हो, चाहे भाई का हक दबा के हो, चाहे डकैती करके हो, माल चाहिए। इसी माल के जुनून में ताकि मैं अच्छी लाइफ गुजारूं, इंजॉय करूं, तो तुम 1000 साल तक उतना नहीं कमा पाएगा जितनी कमाई लता मंगेशकर के पास है। लेकिन उससे पूछा गया हाउ डू यू फील, कैसे महसूस कर रही हो? उन्होंने क्या कहा था? माई ड्रीम्स कुड नॉट बी फुलफिल, मेरा सपना साकार नहीं हुआ, मैं जो चाहती थी मुझको नहीं मिला। मैं सुकून चाहती थी। जिस दिन पार्टी फंक्शन मेरे घर में होता है, लोग आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स में हो जाती हो, लेकिन जैसे लोग जाते हैं वो करो दीवार मुझको काटने दौड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती। आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। दुनिया हिंदुस्तान में एक ऊंची शख्सियत
शख्सियत का नाम है उनका, और उनकी शख्सियत की मलका थी वो। दौलतों के ढेर पे बैठी है, शोहरत भी है। दौलत होती है तो शोहरत के लिए बंदा कुछ न कुछ करता है। मदरसे का सारा पोस्टर छपाई का सारा खर्चा मैं दूंगा, मेरा नाम उसमें दे देना। अब मैं मौलाना तो हूँ ही कि मेरा नाम छपेगा, अब मेरे पास पैसा है तो पोस्टर छपाई का खर्चा मेरी तरफ से मेरा नाम उसमें दे देना। शोहरत के लिए दुनिया क्या नहीं करती है। उसके पास ऐसी शोहरत से दुनिया के सारे अखबारात में उसका नाम छपता हो, लेकिन वो कहती है मैं जो सोचती थी मुझको नहीं मिला। इसी तरह एक चार्ली चैपलिन नाम का शख्स ब्रिटिश फिल्म स्टार है, और करोड़ों के ढेर पे बैठने वाला, करोड़ों जिसके फैंस हैं, जिसकी कॉमेडी को सुनकर लोग अपने गम को हल्का करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह रोता हुआ एक बार डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर से कहने लगा कि मैं अंदर से दुखी रहता हूँ, मेरे गम के हल का कोई रास्ता बताइए। कहा कि तुम चार्ली चैपलिन का शो देखा करो। कहा चार्ली चैपलिन तो मैं ही हूँ। डॉक्टर की आंख पटी की पटी रह गई, जिसको लाखों लोग जिनको सुन रहे हैं एंजॉय अपने गम को हल्का करते हैं, लेकिन ये शख्स अंदर से इतना दुखी है। वो बोला आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूँ ताकि मेरी आंख के आंसू को कोई देख नहीं पाए। जी भर के मैं रहूं। करोड़ों डॉलर के ढेर पे बैठने वाला, करोड़ों फैंस की मौजूदगी में रहने वाला, वो कहता है, आप गूगल खोले, चार्ली चैपलिन बोले, उसको ये बोला उसका आ जाएगा आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स, नोबडी कैन सी माय क्राइंग। मैं बारिश में टहलना चाहता हूँ ताकि कोई मेरे आंसू को देख ना पाए, मेरी तरह को देख ना पाए। जी भर के रोना चाहता। कौन? जो करोड़ों के ढेर पे बैठा है, जो अरबों डॉलर का मालिक है, जिनके करोड़ों फैंस मौजूद है। तुम ये दो चार छोटा सा घर बनाने के लिए जो झूठ बोलता है, जो रिश्वत लेता है, जो हराम खाता है, जो नमाजें छोड़ता है, 500 साल में उतनी दौलत जमा नहीं कर पाएगा जितनी दौलतों के ढेर पे वो बैठा है। लेकिन वो कहता है मैं रोना चाहता हूँ, मेरे दर्द का इलाज किसके पास है? जब चार्ली चैपलिन को सुकून नहीं है, लता मंगेशकर को सुकून नहीं है, जब मुकेश अंबानी को सुकून नहीं है, तो सुकून है कहाँ? Where is peace? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इसका जवाब मोहम्मद अरबी के पास है। ये कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जानने के दिलों को आराम अल्लाह की याद में मिलता है, अल्लाह के जिक्र में मिलता है। तो आज सारी दुनिया जान ले कि दौलतें प्रॉब्लम का हल नहीं है, मकान मसाइल का हल नहीं है। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत जहाँ है वहाँ फकीरी क्यों न हो, अल्लाह सारा सुकून उस घर में अता फरमा देता। सारा सुकून मोहम्मद अरबी की गुलामी में है, सारा चैन मोहम्मद अरबी से सच्ची मोहब्बत में है, सारा सुकून अकाल इस्लाम की सीरत, अकाल इस्लाम की सुन्नत को अपनाने में है। उसी प्यारे नबी के कदमों में अपने आप को डाल दीजिए। मुस्तफ़ा हमारे साखे शराब के दीन हमारूज गर बाउल व रसीदी तमाम गुल हदीस, अपने आप को हुजूर के कदमों में डाल दीजिए। अगर वहाँ तक अपने आप को नहीं पहुँचा सके तो फिर उसमें और अबू लहब में क्या फर्क कर जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको सबको सरकार सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सुन्नत उनकी सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए।